Turn to your neighbor and tell your neighbor even as before you sit down. और आपके बाजू वाले के पास मुड़ो और आपके बाजू वाले से ये को बैठने से पहले Waiting for a breakthrough. एक बड़े आशीष की प्रतीक्षा में, बोलो, एक बड़े आशीष की प्रतीक्षा में, फिर से एक बार, एक बड़े आशीष के प्रतीक्षा में, एका मोठ्या आशीर्वादाच्या नाही, एका मोठ्या आशीर्वादाची वाट बघत आहे. बोला, एका मोठ्या आशीर्वादाची वाट बघत आहे. एका मोठ्या आशीर्वादाची वाट बघत आहे. You may be seated, आप everyone. सभी बैठ सकते हो. एका मोठ्या आशीर्वादाच्या प्रतीक्षेमध्ये Last Sunday we had a very lengthy service. और पिछले इतवार को हमारी सभा जो है वो बहुत ही लंबी चली. So today I'm going to cut my message short. तो आज मैं मेरे संदेश को छोटा करने वाला हूँ. Not because to make Sunu happy और सुनु को खुश करने के लिए नहीं, or Thomas happy या फिर थॉमस को खुश or करने के लिए Girish नहीं, happy, या फिर गिरीश को खुश करने के because लिए नहीं. today is the India final of India versus what is that? क्योंकि आज क्रिकेट मैच का Australia, फाइनल yeah. मैच है इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया. And even Pakistan has reached the finals और पाकिस्तान भी फाइनल पहुंच गए हैं because they are going to watch in the stadium. क्योंकि वो स्टेडियम में आकर देखने वाले हैं. Yeah. So anyways, I'm not here to propagate about cricket today. तो मैं यहाँ पर क्रिकेट के बारे में बताने के लिए नहीं आया But हूँ. last Sunday we had almost 2 hours, more than 2 hours. लेकिन पिछले हफ्ते हमने 2 घंटे बिताए, 2 घंटे से भी ज्यादा बिताए. And people didn't know it finished after 2 hours. और लोगों को ये पता भी नहीं चला कि 2 घंटे के बाद वो खत्म हुआ. But the motive of the word is that you remember the word. That is more important. लेकिन वचन का यही उद्देश्य है कि आप उस वचन को याद रखें. यही बहुत ही महत्वपूर्ण Can I है. hear an amen? क्या मैं आमेन सुन सकता हूँ? Amen. आमेन. So I'm cutting my message short today in 2 parts. तो आज मैं मेरे वचन को छोटा कर रहा हूँ और उसे 2 भाग में मैं अलग कर रहा हूँ. Amen. Let's open our Bibles to Luke chapter 5, everybody. और इस वक्त हम अपने बाइबल को खोलेंगे. लूका रचित सुसमाचार इसका 5वां अध्याय है. And we're going to read from verses 1 onwards. Luke 5 and verses 1 onwards. और हम वचन 1 से आगे हम पढ़ने वाले हैं. लूका रचित सुसमाचार इसका 5वां अध्याय वचन 1 से आगे. And it came to pass that as the people pressed upon him to hear the word of God, he stood by the lake of Gennesaret and saw 2 ships standing by the lake. But the fishermen were gone out of them and were washing their nets. And he entered into one of the ships, which was Simon's, and prayed him that he would thrust out a little from the land. And he sat down and taught the people out of the ship. Now when he had left speaking, he said unto Simon, Launch out into the deep, and let down the nets for a draught. And Simon answering said unto him, Master, we have toiled all the night, and have taken nothing. Nevertheless, at thy word I will let down the net. And when they had done this, when they had this done, they enclosed a great multitude of fishes, and their net brake. And they beckoned unto their partners which were in the other ship, that they should come and help them. And they came and filled both the ships, so that they began to sink. When Simon Peter saw it, he fell down at Jesus' knees, and saying, Depart from me, for I am a sinful man, O Lord. For he was astonished at all that were with him, at the draught of the fishes which they had taken. आमेन. और ऐसा हुआ कि जब परमेश्वर का वचन सुनने के लिए भीड़ उस पर गिरी पड़ती थी, वह गेनेसरत के झील के किनारे पर खड़ा था. और उसने झील के किनारे 2 नाव लगी हुई देखी, और मछुए उन पर से चले गए थे और उतरकर जाल धो रहे थे. और उन नाव में से एक पर जो शिमोन की थी, चढ़कर उसने उससे विनती की कि किनारे से थोड़ा हटा ले. और तब वह बैठकर लोगों को नाव पर से उपदेश देने लगा. जब वे बातें कर चुका तो शिमोन से कहा, गहरे में ले चल और मछलियां पकड़ने के लिए अपने जाले डालो. और शिमोन ने उसको उत्तर दिया कि हे स्वामी, हमने सारी रात मेहनत की और कुछ न पकड़ा, तो भी तेरे कहने से जाल डालूंगा. और जब उन्होंने ऐसा किया तो बहुत मछलियां घेर लाए और उनके जाल फटने लगे. इस पर उन्होंने अपने साथियों को जो दूसरे नाव पर थे संकेत किया कि आकर हमारी सहायता करे. और उन्होंने आकर दोनों नाव यहाँ तक भर ली कि वे डूबने लगी.
यह देखकर शमौन पतरस यीशु के पांव पर गिरा और कहा, हे प्रभु, मेरे पास से जा, क्योंकि मैं पापी मनुष्य हूँ। क्योंकि इतनी मछलियों के पकड़े जाने से उसे और उसके साथियों को बहुत अचंभा हुआ। Amen. आमीन। We all know the scripture very well. और हम सभी को ये जो वचन का भाग है अच्छी तरीके से पता है, But keep your minds open for an awesome revelation from the word. लेकिन आपके मनों को खुला रखो परमेश्वर के वचन से एक अद्भुत प्रकाशन के लिए। Now, just give me a few minutes and I believe God is going to bless you on the word of God. और बस मुझे कुछ मिनट दो और मुझे विश्वास और भरोसा है कि परमेश्वर आपको परमेश्वर के वचन के द्वारा आशीषित करेगा। Here we see that Jesus is coming at the lake called Gennesaret. और यहाँ पर हम देखते हैं कि यीशु जो है गेनेसरेत नामक झील के पास आता है। The miracle of the great drought और वो मछलियां का घेर जो उन्होंने पकड़ा था, उसका चमत्कार जो है has taken such a limelight और उसे इतने प्रकाश में ले आया है that we have forgotten to see what has happened in chapter 4 of the same book. कि हम ये देखना भूल गए कि इसी किताब के वचन 4 में क्या हुआ है। The Lord went to his own village called Nazareth. और परमेश्वर जो है उसके खुद के गांव में गया जिसका नाम है नासरत। He went in a synagogue और वहां पर वो मंदिर में गया the day prior actually. और एक दिन पहले देखा गया तो, And he began to read the book of Isaiah, और वहां पर यशा का किताब वो पढ़ने लगा, where he talks about himself, जहां वो खुद के बारे में बताता है, where he speaks that how he is anointed to preach the gospel to the poor. और जहां पर वो कहता है कि वो कैसे वो अभिषिक्त हुआ है कि सुसमाचार को सभी लोगों के पास वो ले जाए, गरीबों में लोगों के गरीबों में ले जाए। He's anointed to bring a sight to the blind, और उसे अभिषेक किया है कि अंधों को आंखें मिल to जाए heal the brokenhearted. और जो टूटे हुए दिल है वो चंगे हो जाए। When he reads this, और जब वो इसे पढ़ता है and then he says that this has been completed in your witness to the congregation there in the synagogue. और जो मंदिर में वहां पर जो लोग बैठे हैं वो जब पढ़ के खत्म होता है तो वो ये कहता है कि आपके सभी के उपस्थिति में ये आज खत्म हुआ है, पूरा हुआ है। So when he says that, तो जब वो ऐसा कहता है and when the people do not like him, और जब लोगों को वो पसंद नहीं आता है because they know him to be that Joseph's son, क्योंकि वो उसे जानते हैं कि यूसुफ का बेटा है, so they almost are going to throw him off the cliff of the city. और वो ऐसा है कि वो उसे शहर के छोर जो पर्वत का छोर है उसके उस वहां से वो उसे फेंकने वाले थे। They are going to throw Jesus over the cliff of his own city. और वो यीशु को उसी के शहर के पर्वत के छोर से नीचे फेंकने वाले थे। And that time Jesus somehow escapes from the crowd और वहां पर यीशु कैसे ना कैसे करके उस भीड़ से वो बच के निकलता है and moves on to Capernaum, और कफरनहूम में आ जाता है and great miracles happen. और वहां पर महान चमत्कार होते हैं। After some time we see the next day morning, because of a big crowd is still following him, he is gone into a deserted place. और उसके बाद हम देखते हैं कि अगला दिन जो है वो एक बड़ी भीड़ फिर भी उसके पीछे पीछे चल रही है, तो वो एक सुनसान जगह पे चला जाता है। Even there people follow him. वहां पर भी लोग उसके पीछे पीछे आ जाते हैं। Eventually he comes to the lake called Gennesaret. और आखिर में वो गेनेसरेत नामक झील के सामने आ जाता है। And looking at the crowds of people, और लोगों की भीड़ को देखकर he sees there are ships over there, but the fishermen are not in the ship. और वो देखता है कि वहां पर नाव है लेकिन मछुआरे उस नाव में नहीं है। Now, you hear this everybody. और अब सभी जने से सुनो, My question is मेरा सवाल यह है that why did Jesus move away from the crowd? कि यीशु उस भीड़ से दूर क्यों गया? Why did he want to be alone? वो अकेले क्यों रहना चाहता था? Let us pause here for some time. और यहाँ पर हम थोड़ी देर के लिए रुक जाते हैं। Let us fix our focus upon the lake of Gennesaret, आइए हम अपना ध्यान जो है गेनेसरेत के झील पर रखेंगे and we come to the two ships. और हम उन दो नावों के पास आते हैं। But they were fishermen were gone out, लेकिन उसके मछुआरे तो बाहर चले गए थे and they were washing their nets. और वो उनके जाले धो रहे थे। Now listen everybody. अब सभी सुनो, Here are two individuals. यहाँ पर दो अलग अलग व्यक्ति है। One is Jesus एक है यीशु and one is Peter. और एक है पतरस। Jesus dejected by his own people.
और यीशु जो है उसके खुद के लोगों से नकारा गया है, उसे दूर किया गया है। And Peter, और पतरस having toiled whole night, पूरी रात मेहनत करने के बाद has caught nothing और उसने कुछ भी नहीं पकड़ा है and has come to the shore empty-handed. और वो किनारे पर आया है खाली हाथ। Two individuals have faced dejection. और यहां पर दो व्यक्ति हैं जिन्होंने दुख का सामना किया है या फिर लोगों से दूर किए जाने का सामना किया है, ठुकराए जाने का सामना किया है। यीशु ने लोगों के द्वारा ठुकराए जाना और पतरस ने उसके धंधे के द्वारा ठुकराए जाना। आमीन। Both people. दोनों भी लोग। And Jesus comes on the scene of a discouraged Peter. और यीशु एक निराश पतरस के चित्र में आ जाता है। And Peter is washing his nets. और पतरस तो उसके जाले धो रहा है। While washing his nets, और जैसे वो उसके जाल धो रहा है, Jesus asked him his ship. और यीशु ने पतरस से उसकी नाव की मांग की। And Peter immediately saying yes to him और पतरस जो है तुरंत ही उसे हाँ कह देता है and sits in the ship with him और वो उसके साथ उसके नाव में बैठ जाता है and takes it a bit further into the sea, into the lake, और झील के थोड़े अंदर वो ले जाता है and allows Jesus to use his ship as a podium to preach the word. और यीशु को वो परवाना देता है कि उसका नाव का इस्तेमाल वो एक मंच करके करे और लोगों से वो बातें करे। Now hear this everybody. अब सभी जन इसके बारे में Jesus uses his ship, और यीशु उसके नाव का इस्तेमाल करता है, preaches the word, वचन देता है and then tells Peter, और फिर पतरस से कहता है take the ship into the deep कि नाव को झील के गहराइयों में ले चल and cast your net there. और तेरे जाल वहां पर डाल। Now hear this everybody. और आप सभी जन सुनो, It is important that you and I understand ये महत्वपूर्ण है कि आप ये समझ ले what do I need to do to get a breakthrough. कि एक बड़ा आशीष पाने के लिए मुझे क्या करना है। How many want to know that? कितने लोग इसे जानना चाहते हैं? Amen. Amen. Now hear this everybody. Point number 1. आप सभी जन इसे सुनो, मुद्दा क्रमांक 1। You know, whenever we go through a tough time in our life, जब कभी भी हम हमारे जिंदगी में एक कठिन समय से गुजरते हैं, we immediately start giving up. हम तुरंत ही हार मानने लगते हैं। I don't blame you for this. देखो, मैं इसके लिए आपको दोष नहीं देता, I blame your parents for this. लेकिन मैं आपके माँ बाप को इसके लिए दोष देता And हूँ I blame their parents for that, for them. और उनके लिए मैं उनके माँ बाप को दोष देता हूँ, Because क्योंकि parents should teach the child to persevere in tough times. क्योंकि माँ बाप ने बच्चों को यह सिखाना चाहिए कि कठिन समय में वो आगे बढ़ते जाए और टिके रहे। Amen. लेकराला सगळं मांडीवर काढून द्यायचं नाही, मग त्याला ती सवय लागती, फिर उसको आदत लग जाती है और जिंदगी कुछ भी हमारे गोदी में नहीं डालती। आमीन। जिंदगी हमारे गोदी में कुछ भी नहीं डालती। कितने लोग इस बात से सहमत है? आमीन कहेंगे। आमीन। 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 Nothing is easy in this life. इस जिंदगी में कुछ भी आसान नहीं है। अगर आपके बच्चे खुद के कपड़े नहीं धोते, आप मत धो। उनको पहनने दो गंदे कपड़े। आप आपके बच्चों को बिगाड़ रहे हो। सबसे बड़े दुश्मन आपके बच्चों के आप ही हो, शैतान नहीं। This is the nature of parents to over love. और ये माँ बाप की फितरत ही है जो ज्यादा का प्यार करते हैं। फाजील लाड त्याला मराठीत म्हणतात, फाजील लाड, फालतू का लाड। या लेकराला सांगितलं कपडे धू, हे साफ कर, नाही करत, मग आई येते स्वतःच करते। कशाला? जीवनामध्ये तू गेल्यानंतर, तू वर गेल्यानंतर जीवन येऊन साफ करणार आहे का? हा? आमीन। अजूनपर्यंत मी पाहिलेलं नाही जीवनाला माझं ताट येऊन घासताना। आमीन।
So the point is, तो मुद्दा ये है, I've not come to the first point till now. Listen, I'm building up my point. मैं पहले मुद्दा तक अब तक आया नहीं, बस उस मुद्दे तक आने के लिए मैं मैं बांध रहा हूँ. Life is about tough times. जिंदगी जो है वो कठिन समयों के बारे में है. If you see your life's graph, अगर आप आपके जिंदगी के ग्राफ को देखोगे, you will find that tough times are more and good times are less. आप ये देखोगे कि कठिन समय जो है वो ज्यादा है और अच्छा समय जो है वो कम है. Yeah. हाँ, With pain in your body, you will have to live every day for some time. और आपके शरीर में वेदना रख कर कुछ समय के लिए आपको जीना पड़ेगा. One hand is not moving properly, but you have to live every day and do your job properly. Life is expecting from you. और एक हाथ ठीक से काम नहीं कर रहा है, पूरी तरह से काम नहीं कर रहा है, लेकिन जिंदगी आपसे यह अपेक्षा रखती है कि फिर भी आप आपके जिंदगी के सारे काम ठीक से करें. Amen. आमीन. Your kidneys are not functioning properly, but nobody in this world is caring about you. You can't cry and tell people, my kidneys are paining, my kidneys are paining. Still in the office, they are expecting you to do your 100%. और आपके किडनी जो है वो ठीक से काम नहीं कर रहे हैं और आप चिल्लाकर रोकर किसी को ये बता भी नहीं सकते कि आपके किडनी जो है ठीक से काम नहीं कर रहे हैं, और लेकिन आपके ऑफिस के लोग जो है फिर भी आपसे ये अपेक्षा रख रहे हैं कि आप वहां पर बैठ के आपके किडनी दुखे या ना दुखे, आप दुखते हुए भी आपको अच्छी तरीके से काम करना है. Yeah. Life is not easy. Tell your neighbor. और आपके बाजू वाले से कहो, जिंदगी आसान नहीं. बोलो बाजू वाले को. जिंदगी आसान नहीं. फिर से एक बार. जिंदगी आसान नहीं. You cannot be tossed by the waves of the high and the low tides of life. और आप जिंदगी के लहरों से जो ऊंचे जाते हैं और नीचे आते हैं, उससे यहाँ वहां फेंके नहीं जा सकते. You cannot be monitored or controlled by such things. और ऐसे चीजों से आप पर नियंत्रण नहीं हो सकता. Amen. आमीन. Because you are the boss. क्योंकि आप बॉस हो. Now listen everybody. आप सभी हम सुनो. So here is one person, one human called Jesus, who was tossed, almost to be tossed by the cliff of Nazareth. और यहाँ पर एक व्यक्ति है, एक इंसान है जो नासर के पर्वत के छोर से फेंका जाने वाला था. उसके ही लोगों के द्वारा, उसके ही गांव के लोग. And still he is doing the work of God. लेकिन वो फिर भी परमेश्वर का कार्य कर रहा है, काम कर रहा है. He didn't give up. वो उसने हार नहीं मानी. He didn't turn back. वो पीछे फिर नहीं लौटा. He didn't cry. वो रोया नहीं. He must have felt bad because he loved them. उसे बुरा तो लगा होगा. क्यों? क्योंकि वो उनसे प्यार करता था. आमीन. Because right after his baptism he went to his village. क्योंकि उसके बपतिस्मा के बाद वो सीधा उसके गांव चला गया. After being tempted by the devil for 40 days and 40 nights. और 40 दिन 40 रात शैतान से इब्लिस के द्वारा उसे वो मोहित होता है कि नहीं ये देखने के लिए. उसके बाद After that he goes to his own village. उसके बाद वो खुद के गांव में चला जाता है. And what does he see there? और वहां पर वो क्या देखता है? That his fish don't accept him. कि उसके मछलियां जो है उसका स्वीकार नहीं कर रहे हैं. Come on, talk to me somebody. चलो कोई तो मुझसे बातें करो. Amen. आमीन. But he doesn't cry, he doesn't give up, he doesn't commit suicide. लेकिन वो हार नहीं मानता, वो रोता नहीं और वो आत्महत्या भी नहीं करता. He doesn't hang himself to the fan. और वो खुद को फैन से लटका नहीं देता. Like many of us think of doing that. जैसे बहुत सारे लोग हम मेरे बीच में सोचते हैं ऐसा करने के लिए. मांजर भुकली की आपण लगेच फॅनवर लटकून मरून जातो. कुत्र्याने माव केलं की लगेच अरे आत्महत्या. मी आता ह्यांना धडा शिकवते. काय धडा शिकवला? लटकून मेली. काय धडा शिकवला तू काय धडा शिकवला? त्यांनी मला सोडलं म्हणून मी लटकून मेले. हा धडा शिकवला. अरे धडा शिकवायचा तर असं मोठं बन की त्यांनी आत्महत्या केली पाहिजे हे म्हणत की मी का हिला सोडलं. ह्याला म्हणतात धडा शिकवणं. आमीन. हा कोणता धडा शिकवला? कोणता येडा धडा या? असं बनवून दाखव की त्यांनी प्रत्येक दगडावर स्वतः डोकं फोडलं पाहिजे. रोज सकाळपासून रात्रीपर्यंत मी का सोडलं. आमीन. आणि तू त्याच्या गाण्यावरती रॅप गाणं काढ. मी का सोडलं. फेमस बन युट्यूब वर. आमीन.
एवढी चांगली मुलगी मी का सोडली का सोडली का सोडली का वाजव का सोडली का सोडली का सोडली का वाटोळ झालं माझं वाटोळ झालं माझं वाटोळ झालं का सोडली का सोडली का सोडली का 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 मग वाजव. Come on, give the Lord a mighty hand of praise, everybody. ए, सभी मिलकर इसके बाद से हाथ दे, चलो. अजिबात ताकदच नाहीये टफ टाइम्स हँडल करायला. आमेन, आमेन. है की नाही? This is the problem because the parents spoil the children. और ऐसा समस्या क्यों है? क्योंकि माँ बाप ने बच्चों को बिगाड़ के रखा है. हाँ, थोडं टफ होऊ देतच नाही. अरे मडक्यांना पण ज्यावेळेस कुंभार बनवतो ना तो त्यांना भट्टीत ठेवतो. Amen, amen, टफ व्हायला amen. टफ व्हायला टफ Amen. व्हायला. So people of God, hear this everybody. तो परमेश्वर के लोगों सभी जन इसे सुनो. Life is not going to keep you in a cradle and keep you singing a song always every day for you. और जिंदगी जो है आपको एक पालने में रखकर आपको हिलाकर हर दिन आपके लिए गाना नहीं गाने वाली. No, people of God. नहीं परमेश्वर के लोगों. Life is going to give you tough times. लेकिन जिंदगी आपको कठिन समय जरूर देगी. And God is going to check from heaven above. और परमेश्वर जो है स्वर्ग में बैठा हुआ वहां से जांचेगा That are you his child or no? कि आप उसके बच्चे हो या नहीं. That have you got the tenacity in you? क्या आप में टिके रहने की क्षमता है या नहीं? Go through the process of being made whole. कि उस प्रक्रिया से गुजरे जहां पर हम पूरे बन जाते हैं. आमेन. जिथं पूर्णत्व आपल्याला मिळत आहे आपण पूर्ण होत आहोत त्या प्रक्रियेतून जाण्यासाठीची क्षमता तुझ्यामध्ये आहे का हे देव वरतून तपासत आहे देव. आमेन, आमेन. So tell your neighbor, don't give up. तो आपके बाजू वाले से कहो हार मत मानो. बोलो. हार मत मानो. Amen. आमेन. Now listen everybody. आप सभी जन सुनो. So Peter is discouraged and washing his nets. तो पत्रस यहाँ पर निराश है और उसके जाले वो धो रहा है. And suddenly from somewhere comes Jesus with a big crowd following him. और अचानक से यीशु जो है कहीं से तो आ जाता है और उसके पीछे पीछे एक बड़ी भीड़ है. One thing I've learned from Jesus very profoundly in my life. और एक चीज मैंने यीशु से सीखा है वो भी बहुत ही महान तरीके से सीखा है मेरे जिंदगी के लिए. That when no one is there to pat your back, कि जब आपके पीठ को थपथपाने के लिए कोई नहीं होता, you take your hand and pat your own back कि आप ही का हाथ लो और आपके पीठ को थपथपाओ and tell और yourself, खुद से कहो well done. अच्छा किया. Give the Lord a mighty hand of praise, everybody. Come आइए on. सभी लोग के हाथ में चलो. Amen. आमेन. Treat yourself. और खुद को ट्रीट करो. Go to McDonald's, go to KFC, go anywhere. Have something awesome and treat yourself and say, well done, good job. और मैकडॉनल्ड्स में जाओ, KFC में जाओ, कहीं तो चले जाओ और खुद को वहां पर खाना मंगा लो खुद के लिए और खुद से कहो बहुत अच्छा किया. Yeah, because you know you need encouragement. क्योंकि आपको पता है कि आपको उत्तेजना की जरूरत है. Amen. Amen. And that's what Jesus did after being rejected by his own people. और उसके खुद के लोगों से ठुकराने के बाद यीशु ने यही तो किया है. Amen. He shifted the location. हाँ, उसने जगह ही बदल दी. Yeah. हाँ, कभी कभी प्रॉब्लम तुम में नहीं रहता है, प्रॉब्लम जगह में रहता है. आमेन. Amen. नाही, हेच पाहिजे, हेच पाहिजे. अरे सरक ना पुढे. आमेन. Come on यार, come on, talk to चलो me चलो चलो somebody. कोई तो Come मुझसे on. बातें करो. चलो चलो Come on. चलो. इथे हेच पाहिजे करत करत दात तुटले सगळे. हेच पाहिजे, सगळे डोक्याची केस गेले. हेच पाहिजे. अरे पुढे सरक. आमेन. जे तुला हवंय ते जागेमध्ये भरपूर आहे, दुसऱ्या जागेमध्ये नाही. हेच पाहिजे. कोई आमेन चिल्लाएगा क्या? कम ऑन आमेन, 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 नाही आमेन. मला हेच पाहिजे. आता हेच पाहिजे मला. हेच पाहिजे मला. बस पाळ्या दे माझ्या. कप मधून ते धुवून दे, त्याला धुवून दे. असं धुवूनच त्याचं ठेवले नाही. होते. परत धुवून ते घाण लागले त्याच्यामध्ये. आवाज आला, दात फुटायचे त्याचे. मला हेच पाहिजे. जगह बदलो. टेल योर नेबर, change the place. Come आपके on. बाजू वाले से कहो जगह बदलो. Come on, change the place. चलो जगह बदलो. Change the place. चलो जगह बदलो. The world is your province. और पूरी दुनिया आप ही की तो जगह है. Come on, give the Lord a mighty hand of praise. चलो सब मिलकर
people of God, hear this, everybody. आपको पता है परमेश्वर के लोगों, सभी जन इसे सुनो। When the Lord was going to rise up into heaven, और जब प्रभु स्वर्ग में उठाया जाने वाला था, he told the disciples, उसने उसके चेलों से कहा, go ye into the world and preach the gospel. और इस दुनिया में जाओ और सुसमाचार सुनाओ। Amen. आमेन। बोला कि नहीं बोला? बोला। बोला कि नहीं बोला? बोला। You know what the disciples did? आपको पता है कि चेलों ने क्या You किया? know what the first church did? आपको पता है कि पहले कलीसिया ने क्या किया? They sold all their property. उन्होंने उनके सारा धन दौलत जो है वो बेचकर, That's what they did was right. और ये जो उन्होंने किया वो सही था, But they began to live together. लेकिन वो सभी जन इकट्ठा रहने लगे। Why? क्यों? Because brotherly love. क्योंकि भाई का प्यार। या भाई का प्यार, भाइयों का प्यार, बहनों का प्यार, एक साथ रहेंगे प्यार बढ़ेगा. They began to stay together. और वो एक साथ रहने लगे। And you know what happened? और आपको पता है क्या हुआ? God sent Saul कि परमेश्वर ने शाऊल को भेजा and he began to kill them. और वो उन्हें मारने लगा। So they began to run away in the whole world. तो फिर वो इस दुनिया में फैलने लगे। And that's why we got the gospel. और इसलिए तो हमें सुसमाचार मिला। आमेन आमेन। Give the Lord a mighty hand of praise, everybody. आइए Come सब on. मिलकर परमेश्वर के नाम को चढ़ाओ। People of God, hear this, everybody. परमेश्वर के लोगों समझने से सुनो। I'm reminded of the Holy Ghost, the Tower of Babel. और पवित्र आत्मा ने मुझे बबेल के बुर्ज के बारे में याद दिलाया है। You know, the people of that time said, we will not spread over the whole world. We will stay together in one building. और उस वक्त के लोगों ने कहा कि हम इस दुनिया में फैलेंगे नहीं, लेकिन बस एक ही इमारत में हम सभी जन इकट्ठा रहेंगे। And that's what they did was, और उन्होंने क्या किया? they made a big tower उन्होंने एक बड़ा बुर्ज बांध लिया and they began to stay in that tower. और वो उसमें रहने लगे। दुनिया की सबसे पहली अपार्टमेंट बिल्डिंग उन्होंने बनाई थी, ध्यान में रखो आप। आमेन आमेन। The first building apartment made in the time of Babel, you know, the Tower of Babel. और टावर ऑफ बाबेल का जो बुर्ज है वो उस समय का सबसे पहला अपार्टमेंट बना था। Now listen, everybody. आप सभी जन सुनो। That was not the plan of God. लेकिन ये परमेश्वर की योजना नहीं The थी। plan of God was, परमेश्वर की योजना ये थी go into the whole world and fill the earth. कि इस पूरे दुनिया में फैल जाओ और इस दुनिया को भरो। So God came down, तो खुदा नीचे उतर आया confused their languages, और उनके भाषाओं को बदल दिया and they spread over the whole world. और फिर वो इस पूरे दुनिया में फैल गए। कोई आमीन चिल्लाएगा? आमेन Amen. आमेन। Whenever you stick to a particular place, thing, or person and don't want to go ahead if it is God's plan for you, और जब कभी भी आप एक ही जगह में एक ही चीज को या फिर एक ही व्यक्ति को चिपके रहते हो और वो परमेश्वर की योजना वो नहीं है कि आप वहीं पर रहो लेकिन आप आगे जाओ, तो then God is going to make sure that He creates a problem for you in that place. तो फिर खुदा ये ध्यान रखेगा कि उस जगह में आपके लिए वो एक समस्या खड़ा करे। आमेन Amen. आमेन। So that you will move on. ताकि आप आगे बढ़े या फिर वहां से निकल जाए। Amen. आमेन। Jesus moved on. यीशु आगे बढ़ता गया And he came to the place where there was another discouraged man washing his nets. और वो उस जगह पर आया जहां पर एक और व्यक्ति था जो निराश था, जो उसके जाले धो रहा था। When you go through a problem, जब आप एक समस्या से गुजरते हो, you can understand someone else's pain who is facing the same problem. और आप किसी और के दर्द को समझ सकते हो जो उसी समस्या से जूझ रहा है। So Jesus knew तो यीशु जानता था what Peter is facing. कि पतरस किस चीज का सामना कर रहा है। So he didn't choose anyone else's ship, तो इसीलिए वो किसी और का नाव उसने नहीं चुना, but he chose the ship of Peter. लेकिन उसने पतरस के ही नाव को चुना And he sat in the ship और वो उस नाव में बैठा and told Peter, और पतरस से कहा, just take it a bit deeper. बस थोड़ा सा किनारे से दूर ले चल। Point number 1. मुद्दा क्रमांक 1। Are you ready, everybody? अब क्या आप सभी जन तैयार हो? Amen. आमेन। The moment when Jesus said to Peter और वो जैसे यीशु ने पतरस से कहा that put your ship, into the deep, कि तेरे नाव को थोड़े गहरे में ले चल, Peter said to the Lord, और पतरस ने प्रभु से कहा, अरे काय रे बाबा त्रास देतो रे दादा, वैतागाला रे मला, रात्रभर कष्ट केले आणि तू येतो आणि माझी बोट वापरायला बघतो रे. नाही रे नकाय, मला नाही द्यायची तुला माझी बोट. एकदम मावरा पकडलेला नाही मी. थोडंसं आतमध्ये घे. अरे मला मावरा नाही मिळालं, बायको म्हणून हानील धरून मला चपलीनी. मी काय, मला नाही जायचं पाण्यात बिण्यात.
दे येवाना ए नाव दे रे तुझी. अरे तुझीच नाव पाहिजे. अरे नको रे दादा, वैताग आला रे. तुला काय माहिती, रात्रभर किती मेहनत केली मी. तुला माहितीये का, इकडून जाळ्यात टाक, तिकडून जाळ्यात टाक, इकडून जा. तू काही जाळ्यात टाकलं, मला माहितीये काय. अरे एक जाळाचं थोडी लहानचं जाळ असतं, किती मोठं जाळ. इकडून गोळा कर, तिकडून गोळा कर, कंबड दुखत रे. कुठे परत सारखं सांगतो मला नाव परत घेऊन जा रे. नहीं जायचं, मेरे को नहीं जाने का रे पानी में अभी. एक तो रात भर मैं रहा हुआ है उधर, मालूम है क्या तेरे को. रात भर रहा हुआ है, मेरे को बहुत कंटाला है. मेरे को रात को घर पे अभी बीवी अभी 2-3 मछली मेरे को मार्केट से खरीदना पड़ेगा बीवी को जाके देने के लिए. मालूम है कि तेरे को मालूम मेरी बीवी कैसी, तेरे को नहीं मालूम. वो मछली देखी कि नहीं, मेरे को घर के बाहर हकल देगी वो. तेरे को मालूम नहीं है वो. मेरे को क्या क्या करने का तेरे को नाव में मेरे. बस बैठना है और बात अरे करना थोड़ा सा अंदर. ए बाबा ना ये ना बाबा, तुझे नाव दे रे बाबा. याला बघ रे काय रे, मेरा नाव काय को चाहिए तेरे को. तेरा ही नाव चाहिए. नाही रे नको 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 नाव बिव काय नको. तू एकटा घेऊन जा आतमध्ये पाण्यात, मला नको, मला नाही यायचं. कोई हमें चिल्लाएगा क्या. इतना बड़ा दिमाग का दही हो गया रात भर, और सुबह सुबह ये आदमी आके बोलता है तेरी नाव दे. आमीन. कोई हमें चिल्लाएगा. कमान 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 कमान. Am I talking to somebody here? Come on. चलो, क्या मैं किसी के साथ इस जगह में बात कर रहा हूँ. But point is, do you need a breakthrough? Come on, do you need a breakthrough? लेकिन मुद्दा यह है कि आप एक बड़ा आशीष की प्रतीक्षा में हो कि नहीं. Come on, आपको बड़ा आशीष चाहिए क्या. आमीन. Amen. Amen. Then point number 1. तो फिर मुद्दा क्रमांक 1, Whatever you are left with, use it for the glory of God. आपके पास जो कुछ भी बाकी है उसका इस्तेमाल परमेश्वर के महिमा के लिए करो. Amen. आपके पास जो कुछ भी बाकी है, अगर आधा शरीर मर गया है लेकिन अगर आधा शरीर चल रहा है, तो इस आधे शरीर का इस्तेमाल परमेश्वर के महिमा के लिए करा. Move according to the whims and wishes of the devil. और शैतान के इच्छा के अनुसार कभी भी यहाँ वहाँ मत हिलो. कोई आमीन चिल्लाएगा क्या. Come on. आमीन. शैतान कभी नहीं चाहेगा कि आप बाकी के शरीर का इस्तेमाल परमेश्वर के महिमा के लिए करें, लेकिन आप जानते हो कि मेरा परमेश्वर अगर चाहता है तो मैं करूंगा. Of God, परमेश्वर के लोगों, what is remaining with you? Come on, ask your neighbor. Ask your neighbor. आपके बाजू वाले से पूछो, आपके पास क्या बाकी बचा हुआ है. आपके पास क्या बाकी बचा हुआ है. पूछो, आपके पास क्या बाकी बचा हुआ है. काय उरले तुझ्याकडे. काय उरले तुझ्याकडे. काय उरले. काय उरले. एक डोळा गेला, एक आहे, मग वापर देवाच्या गौरवासाठी. आवाज नीट बाहेर येत नाही, पण जो येतोय तो वापर देवाच्या गौरवासाठी. अगर ये हाथ की उंगलियां हिल रही नहीं है, लेकिन ये हाथ की उंगलियां हिलती है, तो उठा कुछ भी स्पीकर, उठा कुछ भी उठा, लेकिन उसका इस्तेमाल परमेश्वर के महिमा के लिए झुकने का नहीं, रुकने का नहीं और रोने का नहीं. आमीन. कितने लोगों को बड़ा आशीष चाहिए. आमीन. तो अपना मनस्थिति बदलो. Tell your neighbor, change your mindset. आपके बाजू वाले से कहो, आपकी मानसिकता बदलो. बोलो बाजू वाले को, आपकी मानसिकता बदलो. फिर से एक बार बोलो, आपकी मानसिकता बदलो. हे नाही आहे म्हणून बाकीचं मी वापरणार नाही. अरे हट. शेवटच्या श्वासापर्यंत त्याची सेवा करत राहिलो ना, ह्याच्यापेक्षा मोठा आशीर्वाद मला मिळणार नाही कधी. मिळणार नाही कधी. आणि तो गॅरंटी घेईल.
असे नेत्र देईल, असं शरीर देईल, असे किडनी, लंग्स, लिव्हर असं देईल, ब्रँड न्यू, चकाचक. अमेन, ह्याला म्हणतात मोठा आशीर्वाद. अमेन, अमेन, कारण तो कोणाचा ऋणी नाहीये. अमेन. तो म्हणतो द्या म्हणजे तुम्हाला दिले जाईल, आणि अशा मापाने दिले जाईल की लोक तुमच्या उदरात घालतील. आणि देव घातल्यावर काय होतं विचार करा. गिव्ह द लॉर्ड अ माइटी हँड ऑफ प्रेज. आइए सभी जन मिलकर प्रभु के हाथ में हाथ जोड़ो. When I came in Christ, जब मैं मसीह में आया I went to one tuition class. Take the name of the tuition और class. मैं एक ट्यूशन क्लास में गया, उस ट्यूशन क्लास का नाम आप ले लो. Very important, you know, you can go to him and learn. और वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप उसके पास जा सकते हो और उनसे सीख सकते हो. And he taught me और उन्होंने मुझे सिखाया that whatever is left in you, कि तुझ में जो कुछ भी बाकी है use it. इस्तेमाल कर. So I would take my half part and go to church this way. तो मैं मेरे आधे शरीर का इस्तेमाल करके कलीसिया ऐसे जाता था. Because I had half paralysis from here and half paralysis from here. क्योंकि यहाँ से आधा लकवा मुझे लगा था और यहाँ से आधा लकवा मुझे So I लगा. would move like this and go to church this way. तो इसलिए मैं ऐसा हिलता था तो और ऐसे कलीसिया को जाता था. People of God, परमेश्वर के लोगों, that tuition class is the tuition class of Jesus Christ. और वो ट्यूशन क्लास जो है वो यीशु मसीह का ट्यूशन क्लास है. He taught me. उन्होंने मुझे सिखाया. फरक पडला ना. What? अमेन, अमेन, अमेन. मला हे वापरता येत नाही. माझं हे वाकडं आहे देवा, पहिले हे सरळ कर, मग मी जाल चर्चला. देव म्हणतो तुझे वाकडं आहे ना ते वापरायला सुरुवात कर, ते घेऊन माझ्या मंदिरात यायला सुरुवात कर, मग मी सगळं काही सरळ करतो. अमेन, अमेन, अमेन. I thank God I did not learn from any man, I learned from you, Jesus. और हे परमेश्वर, मैं तुझे धन्यवाद देता हूँ कि मैं किसी इंसान से नहीं सीखा, लेकिन हे प्रभु यीशु मसीह मैंने तुझसे सीखा. यीशु क्रिस्ता, प्रभु यीशु मसीह की पीठ पूरे फाड़ गई थी, पूरा शरीर फट गया था चाबुक के मार से. यहाँ वहां से लहू बह रहा था, मांस के गोले लटक रहे थे, लेकिन जो भी बाकी था मेरे गुरु ने उसको उठाया और उस गोलगता तक लेके गया. जो भी बाकी था उसका इस्तेमाल किया और गोलगता तक क्रूस लेके गया. Of God, परमेश्वर के लोगों, what is remaining in you today? आज आप में क्या बाकी है? What is remaining in you today? आज आप में क्या बाकी है? What is remaining in you आज today? आप में क्या बाकी है? Use it for the glory of God. उसका इस्तेमाल परमेश्वर के महिमा के लिए करो. And people of God, परमेश्वर के लोगों, God will not leave you nor forsake you. परमेश्वर आपको छोड़ेगा नहीं, त्यागेगा नहीं. And He will bless your ship with lot of fish. और वो आपके नाव को बहुत सारी मछलियां देकर आशीषित करेगा. Come on! पूछो बाजू वाले को क्या बाकी है, क्या बाकी है, क्या बाकी है, क्या बाकी है? क्या बाकी है? क्या बाकी है? पूछो क्या बाकी है, क्या बाकी है? डायबिटीज है, बीपी है, क्या बाकी है? आमेन, लहू है ना शरीर में, आमेन, तो इस्तेमाल कर. आमेन. उसको पर में अगर हाई बीपी है ना तो सबसे हाईएस्ट पावर का अग्नि आने दे अंदर. आमेन, आमेन, आमेन. हाँ, इस सब पावर आने दे. वो बीपी का दुष्ट आत्मा फुट भागना है. Come on, come on, come on, come on. बोल. ऐसा पावर आए कि बीपी के दुष्ट आत्मा को ही बीपी हो जाए. Come on.
बोला डायबिटीज है तो अरे इतना दुआ में घुस, इतना दुआ में घुस, इतना दुआ में घुस जा अंदर कि ऐसी फायर आए ऊपर से कि डायबिटीज भी उधर चल के राख हो जाए। People of God, understand this, everybody. और परमेश्वर के लोगों सभी जन इस चीज को समझ लो। There is something very unique about Peter, which you and I don't have it. और ये पतरस के बारे में कुछ तो बहुत ही अनोखा है जो आप में और मुझ में नहीं है। Yeah, and that is still using what is left over. और वो ये है कि जो कुछ भी बाकी है उसका इस्तेमाल उसने किया। Amen. Amen. जे बाकी है काय स्वार्थासाठी नाही। ह्या माणसाला माझी नाव वापरायची घे, चल मी आलो। आमेन आमेन Amen. आमेन। Many times we get stuck to something which is not working. और बहुत सारे बार हम एक ही चीज में अटक जाते हैं या उसे चिपके रहते हैं जो काम नहीं कर रहा है। और उसको एक काम करने की लगा रहे, करना, it's not working, forget it. अरे काम नहीं कर रहा है, भूल जाओ। See what Jesus is talking to you. और ये देखो कि यीशु आपसे क्या बात कर रहा है। Amen. आमेन। Don't push it. और उसे ढकेलते मत रहो, Let it go. उसे जाने दो, बोलो बाजार को जाने दो। जाने दो, बोलो फिर से एक बार। जाने दो। Focus, point number 2. Focus on Jesus. और मुद्दा क्रमांक 2, यीशु पर ध्यान लगाओ। Tell your यीशु neighbor. पर ध्यान लगाओ। Tell your neighbor. आपके बाजू वाले से कहो, यीशु पर ध्यान लगाओ। यीशु पर ध्यान लगाओ। मतलब वचन पर ध्यान लगाओ। आमेन। You see, it is imperative that you and I understand. आप देखो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि आप और मैं ये चीज समझ ले Focus is everything. कि ध्यान ही सब कुछ है। Tell your neighbor, focus is everything. आपके बाजू वाले से कहो, ध्यान ही सब कुछ है। Once again, ध्यान ही सब कुछ है। once again, ध्यान ही सब कुछ है। Satan likes to play with our focus. और शैतान को हमारे ध्यान के साथ खेलने में मजा आता है। Yeah. हाँ, Because where your focus is, that's where you will go. क्योंकि जहां आपका ध्यान है आप वहीं पर जाओगे। Come on, talk to me, somebody. चलो कोई तो मुझसे बातें करो। Amen. Amen. जिथं लक्ष आहे ना तिथंच तुम्ही जाणार आणि जिथं लक्ष आहे ना तेच वाढणार. Wherever your focus is, that itself will grow. और जहां कहीं पर भी आपका ध्यान है वही चीज बढ़ेगी। Amen. Amen. If you're focusing on your sickness, अगर आप आपका ध्यान आपके बीमारी पर रख रहे हो it is going to grow. तो वो बीमारी बढ़ने ही वाली If है। you're focusing on your problem, अगर आप आपके समस्या पर ध्यान लगा रहे हो it is going to grow. तो फिर वो भी बढ़ने ही वाला है। If you're focusing on your anything that is negative in your life, और अगर आप आपके जिंदगी में जो कुछ भी नकारा है अगर उस चीज पर आप ध्यान लगा रहे हो it is going to grow. तो फिर वो बढ़ने ही वाला है। What did Peter do? पतरस ने क्या किया? After lending his ship to Jesus, और उसके नाव को यीशु को देने के बाद he sat in the ship when Jesus was preaching the word. और जब यीशु नाव में बैठकर संदेश दे रहा था वो वहीं पर नाव में बैठा रहा And listened to what Jesus preached. और जो यीशु बोल रहा था उन बातों को वो सुन रहा था। Give me one chair. Not like us. हमारी तरह नहीं। We have given the ship to Jesus. हमने नाव यीशु को दे दिया है। Jesus is standing and preaching. यीशु वहां पर खड़ा है और संदेश दे रहा है And और हम water is on both the sides. दोनों ही बाजू में पानी है। थोडं यश अंगावर पडतं.
हे असं आपलं आहे. बोलिए दूसरे को, या ऐसा अपने बोलो, हम ऐसे हैं, बोलो बोलो बोलो. हम ऐसे हैं. या अभी वचन सुनेंगे ना तो घर पे जाके फिर से देखेंगे नहीं, यूट्यूब पे नहीं देखेंगे. क्या क्या करने का है, क्यों देखने का है, क्यों देखने का अपने को. देखा सुना सुन, आप पूछेंगे ना क्या हाँ पास्टर चांगले बसले नावामध्ये असं बात करत होते. हेच आठवणार, बाकी काय आठवणार नाही. आता बघा तुम्ही खाली जा आणि 15-20 मिनिटांना कोणाला फोन करून विचार, पास्टरने काय शिकवलं. पास्टर का बसले होते नावामध्ये बसले होते असे, आणि कधी पाणी फेकलं त्यांनी येशूच्या अंगावर. वचन काय होतं, वचन काय होते ते आदामाबद्दल होतं. आदाम त्यांनी येशूला नागडं, म्हणजे नत्ता नागडा होता, येशूला पाहिलं त्यांनी पाण्यात उडी मारली. आदामाने पाण्यात उडी मारली. नाही नाही नाही, आदम ते गेनसरेतच्या तिकडे गेला होता. पुढे गेला होता. गेनसरेतच्या काय होतं ते, तो अब्राम होता. अब्राम होता का. मग अरे मला वाटलं दाऊद होता. अब्रामाची बायको होती ना. अब्रामची बायको होती. मग कधी, तुला नाही माहिती. नाही अरे काय माणसं, मला वाटलं- कसला कशाला येतात ते लोक. मला वाटलं एकटाच होता तो. अब्रामाची बायको मिटायचं काम झाली ना. आता मग? कळालं. बरोबर. काय पण आपलं उगीच. हा. लोटाची बायकोला लेकरू नव्हतं 90 वर्षापर्यंत. असं का. मग काय तू पण ते म्हणून नाही. आपल्याला असं आहे आपलं. आणि तेव्हा मला ब्रेक थ्रू दे, देव म्हणतो तू ब्रेक होऊन थ्रू निघशील. म्हणून मी तो फ्लायरवर पंच दिलाय असा. Peter was listening to this man. और पतरस ये व्यक्ति जो बोल रहा था उन बातों को सुन रहा था. Because you know what he said? क्योंकि आपको पता है उसने क्या कहा. He said to Jesus उसने यीशु से ये कहा that when Jesus said to him कि जब यीशु ने उससे कहा that launch out into the deep, कि गहराई में ले चल, he said, Master, we have toiled all the night और उसने कहा कि हे स्वामी हमने सारी रात मेहनत की है and have taken nothing. और कुछ न पकड़ा है. Nevertheless, at thy word. तो भी तेरे कहने से. Read once again. तो भी तेरे कहने से. Nevertheless, at thy word. तो भी तेरे कहने से. Nevertheless, at thy word. तो भी तेरे कहने से. I will let down the net. मैं जाले डालूंगा. Amen. Faith cometh Amen. by hearing from the word of God. और विश्वास बढ़ता है सुनने से, और सुनना परमेश्वर मसीह के वचन से होता है. Amen. Amen. That means Peter sitting in the ship was not just captaining the ship, but he was listening to the big boss. तो इसका मतलब यह है कि पतरस जो था वो नाव में बैठकर बस नाव को वहीं पर खड़ा नहीं रखा है, लेकिन वो बिग बॉस की भी सुन रहा था. Amen. Amen. He was listening to the words coming out of this man whom he didn't know. और वो उन अल्फाजों को सुन रहा था जो इस व्यक्ति के मुंह से बाहर आ रहा था, जिसे वो नहीं जानता था. People of God, परमेश्वर के लोगों, and while hearing the word of God, और जैसे वो परमेश्वर के वचन को सुन रहा था, he forgot about his problem. और वो उसके समस्या के बारे में भूल गया. Listen everybody. सब जन सुनो. How many need a breakthrough in your life? और कितने लोगों को अपने जिंदगी में एक बड़ा आशीष की जरूरत है. Can I hear a loud amen? मैं आमीन सुन सकता Hear हूँ. this everybody. सब जन सुनो. You have to shift your focus from off your problem and keep your focus on Jesus. आपको आपका ध्यान आपके समस्या से हटाकर आपके ध्यान को यीशु पर रखना है. Amen. Amen. When Jesus comes in your ship, in your life, और जब यीशु आपके नाव में आता है, आपकी जिंदगी में आता है, the miracle will follow. चमत्कार आपके पीछे पीछे होलेगा. Amen. अगर यीशु आया है, इसका मतलब चमत्कार भी आया ही है. ये असंभव है कि खुदा आए, यीशु आए और आपको चमत्कार न मिले. Come on! God, hear this everybody. परमेश्वर के लोगों सभी इससे सुनो. You and I need to understand the key. और आपको और मुझे वो चाबी जो है, जो चाबी है, उसे समझना है. The key is चाबी है focus
on Jesus, not your crisis. कि आपका ध्यान यीशु पर रखो, आपके समस्या पर नहीं. आपका ध्यान यीशु पर लगाओ. बोलो बाजाली को बोलो. आपका ध्यान यीशु पर लगाओ. फिर से एक बार बोलो. आपका ध्यान यीशु पर लगाओ. That is the word of God. और वो है परमेश्वर का वचन. Amen. Don't read the word to come out of the problem. और समस्या से बाहर आने के लिए इस वचन को मत पढ़ो. No. नहीं, 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 Read the word to know him. लेकिन वचन को पढ़ो उसे ही जानने के लिए. आमेन. The more you read the word to know him, और जितना ज्यादा आप वचन को पढ़ोगे उसे ही जानने के लिए something is going to happen. कुछ तो होने वाला है. Listen, everybody. सभी जन सुनो. The first thing that's going to happen is, जो सबसे पहली चीज होने वाले वो ये है. let's open our Bibles to Psalm 23, everybody. आइए इस वक्त हम अपने बाइबल को खोलेंगे. भजन संहिता 23. Psalm 23. भजन संहिता 23. The Lord is my shepherd, I shall not want. He maketh me to lie down in green pastures. He leadeth me beside the still waters. He restoreth my soul. यहोवा मेरा चरवाह है, मुझे कुछ घटी न होगी. वह मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है. वह मुझे सुखदाई जल के झरने के पास ले चलता है. वह मेरे जी में जी ले आता है. Listen, everybody. सभी The जन सुनो. more you read the word, आप जितना ज्यादा वचन को पढ़ोगे your soul gets restored. आपका जी जो है उसकी पुनर्स्थापना होती रहती है. आमेन. जेवढं जास्ती तुम्ही वचनाला वाचाल, तुमचं जीवन, तुमचा जीव हा पुनर्स्थापित होत असतो. कधी विसरू नका. आमेन. 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 एका पुनर्स्थापित जीवाद्वारे देव महान गोष्टी करू शकतो. आमेन. आमेन. Am I talking to someone here? Come on. क्या मैं किसी के साथ इस जगह में बात कर रहा हूँ क्या? See, for God to heal you, not to heal you, देखो, परमेश्वर को आपको चंगा करने के लिए ना, चंगा करने के लिए ना, to deliver you from your crisis, और आपको आपके समस्या से छुड़ाने के लिए ना, it takes less than 100 part of a second. और एक क्षण के 100 भाग से भी कम समय लगता है. खुदा के लिए क्या है? आपको आपका जवाब देने के लिए क्या है? हाँ, वो ऐसा देखेगा भी तो डन. ओए, आमेन. आमेन. उसको मिल गया. आमेन. सिर्फ उसको अरे हो गया. अरे क्या? आमेन. लेकिन प्रॉब्लम खुदा का अपना शरीर नहीं है. प्रॉब्लम खुदा का हम है. ये वाकड़ा तिकड़ा सोल है. ये वाकड़ा तिकड़ा सोल को सिरे करने के लिए ना परमेश्वर को बहुत टाइम लगता है. 40 साल लग गए इजराइल राष्ट्र को. उधर मर गए वो लोग. आमेन. उनको बच्चों को लेना पड़ा. आमेन. एक दूसरे को बोलो, वाकड्या तिकडे लोकांना सरळ करायला त्रास आहे. बोला. वाकड्या तिकडे लोकांना सरळ करायला त्रास आहे. पुन्हा बोला. वाकड्या तिकडे लोकांना सरळ करायला त्रास आहे. So the focus of Peter in the ship was Jesus. तो जो पतरस नाव में बैठा था उसका ध्यान यीशु था. Now listen, everybody. अब सभी जन सुनो. The moment you focus on Jesus, on the word of God, और जैसे जिस क्षण को आप आपका ध्यान यीशु पर रखते हो या फिर परमेश्वर के वचन पर डालते हो, you know, your whole situation changes. आपको पता है आपकी पूरी परिस्थिति ही बदल जाती है. Listen, everybody. आप सभी जन सुनो. Tell your neighbor once again, focus is everything. और आपके बाजू वाले से फिर एक बार कहो, ध्यान ही सब कुछ है. Amen. Say once again, ध्यान ही सब कुछ है. फिर एक बार कहो, ध्यान ही सब कुछ है. So whenever you focus on Jesus, तो जब कभी भी आप आपका ध्यान यीशु पर रखते हो, लगाए रखते हो, Satan will not like it. शैतान को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है. Now listen, everybody. आप सभी जन सुनो. He will always try his best to disturb your focus. वो पूरी कोशिश करेगा कि आपका ध्यान यीशु पर से हट जाए. Always. हमेशा. Because he knows क्योंकि वो जानता है whatever you focus on, कि जिस किसी भी चीज पर आप ध्यान लगाओगे it will grow. वो बढ़ेगा. Anybody burnt a piece of paper with a magnifying glass? और किसी ने मैग्नीफाइंग ग्लास से या फिर मराठी में भिंगाची काच कहते हैं, उससे क्या आपने पेपर जलाया है? Amen. What do? आप क्या करते हो? You take the magnifying glass. आप वो मैग्नीफाइंग ग्लास लेते हो, भिंगाची काच लेते हो, भिंगा की काच. नहीं, whatever. And you know,
decrease you make the point more sharper by adjusting the focus of that lens. और आप उस लेंस को ऊपर नीचे करते हुए जो तीक्ष्णता है उसके उसे आप सही करते हो, या फिर तीव्रता जो है उसे आप बढ़ाते हो. And when that happens, और जब वो होता है smoke starts coming out. वहां से धुआं निकलता है. Amen. Amen. Now listen, everybody. आप सभी सुनो, Whatever you focus on जिस किसी भी चीज पर आप ध्यान लगाते हो will get activated. वो कार्यरत हो जाता है. Adam and Eve's focus was not supposed to be the fruit at all. और आदम और हवा का ध्यान जो है वो फल पर बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए था. आदम और हवा का ध्यान वो फल होना ही नहीं चाहिए था. बगीचे के सारे पेड़ पौधे, नदियां, झरने, पंछी, हाथी, ऊंट, जो भी है वो होने चाहिए थे. सारे फल होने चाहिए थे. लेकिन उनका ध्यान उस फल पे ही गया. क्यों? क्योंकि उनका ध्यान किसने तभी उस फल पे लाया. Amen. Check up your lives today. आज आपके जिंदगी को जांच लो. You and I, we are talking all rubbish from our mouths. आप और मैं हमारे मुंह से सब बकवास बातें करते हैं, कचरा बात करते हैं. Yeah. हाँ, We've got big mountains in our life, huh? हमारे जिंदगी में बड़े बड़े पर्वत हैं. हाँ, But we are talking all rubbish about everybody. लेकिन हम सभी के बारे में कचरा बोलते रहते हैं. All dirt, all filth. सब गंदगी गंदगी बोलते हैं. And the worst part is we add the label of God. और सबसे बुरी बात यह है कि उसे हम परमेश्वर का लेबल चिपका देते हैं. God showed me. परमेश्वर ने मुझे दिखाया. जैसे लॉर्ड को यही काम धंधा है ऊपर बैठे बैठे कि दुनिया भर की सारी गलतियां लोगों की तुझे दिखाए. लॉर्ड का मिनिस्ट्री क्या है? तेरे को दुनिया भर के सारे लोगों की गलतियां दिखाए. ये लॉर्ड का मिनिस्ट्री है. और तू कौन है? लॉर्ड का जज. तू जज और तू सबके गलतियां लॉर्ड तुझे दिखाएगा और तू बोलेगा लॉर्ड इसका ये कर, उसका ये कर. तेरे जिंदगी में माउंट एवरेस्ट देख कितने. फोकस तेरा किस पे चाहिए? यीशु पे चाहिए. Amen. ना कि लोगों की गलतियों पे. Amen. Come on, talk to me somebody. चलो कोई तो मुझसे बातें करो. Amen. Amen. But we are more focused on stupid things. Stupid, absolute stupid things. लेकिन हम लोग जो है सब बेवकूफ चीजों पर, बेवकूफ बिल्कुल भी सब कुछ बेवकूफ चीजों पर ही हमारा ध्यान रहता है. Yeah. हाँ, And then we say, और फिर हम कहते हैं when will good days come in my life? मेरे जिंदगी में अच्छे दिन कब आएंगे? Seriously? गंभीर रीति से. Staying in India और asking अच्छे दिन? और आप भारत में रहते हैं और अच्छे दिन के बारे में बात कर रहे हो? Seriously? आप सचमुच गंभीर हो? You cannot ask for अच्छे दिन in India. भारत में रहते हुए आप अच्छे दिन की मांग नहीं कर सकते. We are already in अच्छे दिन. हम पहले से अच्छे दिन में हैं. You know, how can you say, Lord, give me a job in this company, give me a job in that company, make my business flourish, I want admission in this big college. How can you ask this? और आप ये कैसे मांग सकते हो कि हे परमेश्वर मुझे इस कंपनी में नौकरी दे, मुझे उस कंपनी में नौकरी दे, हे परमेश्वर मेरे बिजनेस को तू बढ़ा और मुझे इस कॉलेज में एडमिशन दे. आप कैसे मांग सकते हो? How? कैसे? When your focus is not that at all. जब आपका ध्यान उस पर बिल्कुल है ही नहीं. Come on, talk to me somebody. कोई तो मुझसे बातें करो. Amen. Amen. आपलं लक्ष त्या गोष्टीवरती नाहीच आहे आणि आपण देवाला म्हणतो देवा मला हे पाहिजे, मला तीन नोकरी दे, मला तो बिझनेस पाहिजे, मला हा माझा बिझनेस वाढू दे. अरे लक्ष तुझं कुठे बाळा? लक्ष कुठे? Amen. लक्ष कोणत्या कचऱ्याकडे लागले तुझं? की हा काय करतो, तो काय करतो,
ह्याच्या चुका, ह्याच्या चुका, त्याच्या चुका, ह्यानी केलेल्या मुका, ह्याचं काय वाकडं तिकडे झालेलं आहे, असं काय झालेलं आहे, तसं काय झालेलं आहे, आणि त्यांनी असं केलं, तसं केलं, असं केलं, तसं केलं, आणि तू देवाला आशीर्वाद मागतोय. पेत्राला देव मोठी पकड देऊ शकला, कारण पेत्राचं लक्ष येशूकडेच राहिलं. आमेन, आमेन. आपलं लक्ष येशूकडे होतं. बोला एकमेकाला, होतं, होतं, होतं. होतं. Yeah. Now people who are new in Christ, और अब जो लोग मसीह में नए हैं, when they come to God, जब वो नए नए मसीह के पास खुदा के every पास आते हैं, Sunday they have a testimony. Every Sunday, I'm so happy for them. और हर इतवार को उनके जिंदगी में एक गवाही होती है, हर इतवार को, और मैं उसके लिए बहुत खुश हूँ. I'm really happy मैं सचमुच खुश हूँ that God is alive in their life. कि परमेश्वर उनके जिंदगी में जिंदा है. Amen. आमेन. थोड़ा टाइम जाने दो. Just not much, 2 years. और ज्यादा नहीं, बस 2 साल. They'll be sitting down only. They'll have no testimony. वो नीचे बैठे रहेंगे, उनके जिंदगी में कोई गवाही नहीं होती. Why? क्यों? As if the Lord is dead in their life. मानो ऐसा है कि प्रभु जो है उनके जिंदगी में मर चुका है. No. नहीं. He's not dead. वो मरा हुआ नहीं है. He's sleeping in their ship. वो उनके नाव में सोया पड़ा है. Yeah. हाँ. अभी देखो हमारा गवाही आता है क्या? तेरा तो आता है, मेरा कुछ आता ही नहीं है. मैं खुद गवाही हूं. Listen everybody. अब सभी सुनो. So, you know what we do is, तो हम क्या करते हैं वो ये है, we stop focusing on Jesus हम हमारा ध्यान यीशु पर से हटा देते हैं and start focusing on rubbish. और कचरा पर हम ध्यान लगाने लगते हैं. Like sitting in the ship with Jesus. मानो यीशु के साथ नाव में बैठे हैं, He is talking the words of life and power. वो जिंदगी के वो अल्फाज और सामर्थ के अल्फाज बोल रहा है, And we are sitting behind him. और हम उसके पीछे बैठे हैं. Yeah, I got no fish, man. यार हमने कुछ मछली अरे नहीं कुछ पकड़ी मछली है. पकड़ा नहीं रमा है. वो याकूब का खाली पहले सुना मैंने, मैं उसको बोला था यार झील के उस बार ने जाने का, दिमाग का दही करते. याकूब ना यार, अयूब और योहान वो तो बेकार लोग रे, बहुत ही बेकार, बहुत ही बेकार लोग. नहीं सुनने का उनका. अरे तूने, मैं अकेला बैठ बैठ कर रहा हूँ नाव में, अब यीशु के साथ बात बैठ नहीं करेगा. मैं वो प्रीचिंग कर रहा है, मेरे को क्या बोल रहा है क्या मालूम यार. वो यार वो मेरे को, मैंने बोला था सुनते ही नहीं, मेरे को सुनते ही नहीं. बोला था इस झील के इधर मत जा, फिर मेरा सुना नहीं. अभी मैं क्या घर पे लेके जाएगा, अभी क्या करूं, अभी कैसा मेरे बच्चों को खिलाऊं मैं, इतना सारा अभी कैसा मैं, कल भी मिलेगा तो अच्छा रहेगा, कैसा होगा कैसा. यार ये ना योहान बंडल आदमी है यार. योहान मेरे बारे में बहुत बुरा बोलता है सब जगह, बहुत बेकार है योहान है. मेरा दिमाग सटक जाता है. योहान का नाम लिया कि मेरे को ऐसा गुस्सा आता है. अभी नेक्स्ट टाइम मैं ना योहान के नाव को मेरे बाजू में ना, उसको मैं छेद कर देगा, छेद, बड़ा होल ड्रिल मशीन से. देख तू, मेरे को दिमाग, अरे उसको बोला मैं उसको बोला इधर मत आ बाजू में, इधर ये जगह बराबर नहीं, इधर मछली आती नहीं है. लेकिन सुनेगा कौन. उसको मेरा बुरा चाहिए ताकि मेरे को ना घर पे डांट मिले, लोगों मेरा धंधा नहीं हो, मेरा मार्केट डाउन हो जाए. ये योहान बहुत बेकार आदमी है यार. नेक्स्ट टाइम मैं नहीं आने वाला इसके साथ में. अगली बार मैं अकेला चला जाएगा किधर जंगल में जाके मछली पकड़ेगा मैं, लेकिन इधर नहीं आने वाला मैं. बर्बाद हो गया मेरा जिंदगी. ऐसा शेजारी रहेगा तो कैसा रहेगा मेरा लाइफ है. और इधर यीशु मसीह बोल रहा है, जीवन के शब्द बोल रहा है. अभी पतरस को पूछा है तो बोल, अरे क्या बड़बड़ कर रहा है. क्या बड़बड़ कर रहा है. अरे मेरा प्रॉब्लम है, मैं बड़बड़ कर रहा हूं, मेरा दिमाग सटक गया यार योहान की वजह से. क्या. अरे लेकिन वो जीवन का शब्द बता रहा है, तू सुनना. जीवन का शब्द और मेरा मछली का लिंक क्या है. अरे तू सुन तो सही. एक मिनट, जीवन का शब्द और मेरा मछली का लिंक क्या है. अरे बहुत बड़ा लिंक. एक मिनट, मैं क्या पूछ रहा है, जीवन का शब्द और मछली का मेरा लिंक क्या है. मैं सही सवाल पूछा कि नहीं सही सवाल पूछा. आमेन. आमेन. जीवनाच्या शब्दाचा आणि माझ्या माशांचा काय लिंक आहे. कोणी आमेन म्हणे. आमेन. आमेन. फार मोठा लिंक आहे. पुढच्या आठवड्यात पाहूया आपण किती मोठा लिंक आहे, आपण पाहूया.
Amen. Amen. Now, people of God, hear this. I'm closing over here now. और परमेश्वर के लोग आप इसे सुनो, यहाँ पर मैं बंद कर रहा हूँ. In this whole week, from every day onwards from today, और इस पूरे हफ्ते में आज से आगे हर दिन you have to learn to live like more than a conqueror. और आपको जीना सीखना है, वो भी एक विजय प्राप्त करने से भी ज्यादा ऐसा. In Romans chapter 12 and verse 1 and 2 declares, और रोमे की पत्री इसका 12वां अध्याय वचन 1 और 2 घोषित करता है, be ye renewed by the renewing of your mind. Be ye transformed by the renewing of your mind. और आपके मन के परिवर्तन से और नए हो जाने से आप नए बन जाओ. Amen. आमेन. Saints of God, परमेश्वर के संतगणों, it is of no use if you are using what is left over for Jesus if your focus is not the word. और ये किसी भी काम का नहीं, ये किसी भी काम का नहीं कि आप आपका जो बाकी है उसका इस्तेमाल कर रहे हो परमेश्वर के महिमा के लिए, अगर आपका ध्यान यीशु पर है ही नहीं तो. जर का तुम्ही जे उरला आहे, तुम्ही जर का देवाच्या गरजेसाठी वापरत आहात, चांगली गोष्ट आहे. पण जर का तुमचा फोकस देवाचं वचन नाही तर काय फायदा नाही. आमेन. बोथ आर इम्पॉर्टंट. दोनों भी महत्वपूर्ण है. बोथ. दोनों भी. You should use what is left for the glory of God. जो बाकी है आपको उसका इस्तेमाल करना है परमेश्वर के महिमा के लिए. And focus on the word of God. और परमेश्वर के वचन पर भी ध्यान लगाना है. Amen. Satan will try his best to shift your focus off. शैतान पूरी कोशिश करेगा कि आपका ध्यान वहां से हट जाए. Because if the focus is shifted, क्योंकि अगर ध्यान हट जाएगा, you will stop using, listen everybody, सभी जन सुनो, you will stop using what is left for the glory of God. क्योंकि अगर आपका ध्यान हट गया तो जो कुछ भी बाकी है उसका इस्तेमाल करना आप बंद करोगे, उसका इस्तेमाल आप करना बंद करोगे परमेश्वर के महिमा के लिए. कोई आमेन बोलेगा क्या? आमेन. या जे काही तुम्ही देवाच्या गरजेसाठी वापरत आहात, जर का तुमचा फोकस शिफ्ट झाला, तुम्ही निराश व्हाल. तुम्ही झटक्यात निराश व्हाल आणि निराश झाल्यानंतर तुम्ही देवासाठी काही करणार नाही, काहीच नाही. God forbid this never happens, but Deepak, imagine if your, two fingers, stand up, two fingers, one this finger and one this finger, cut by and this finger, both these fingers, 4 fingers pointed out. Okay, they stop moving for, something happens and they stop working. और ऐसा खुदा ना करे कभी ऐसा हो, लेकिन दीपक ये जो तेरे 4 उंगलियां है, ऐसा ना हो कि वो चलना है वो काम करना बंद कर दे या फिर उसका हिलना बंद हो जाए और वो रुक जाए. And then you still have to play the keyboard. लेकिन फिर भी तुझे कीबोर्ड बजाना है. How will you do that? तू वो कैसे करेगा? It's a challenge for him. ये दीपक के लिए चुनौती है. कोई आमेन बोलेगा? आमेन. But God will see him whether he accepts the challenge, yes or no. लेकिन खुदा उस पर उसे देखेगा कि वो चुनौती को स्वीकारता है या नहीं. Amen. Amen. Now watch everybody. आप सब जन देखो. Now he has still 1, 2, 3 and 6 fingers with him. अब उसके पास फिर भी 6 उंगलियां जो है वो काम कर रहे हैं. And when he starts playing with those remaining 6 fingers, और जब वो बाकी 6 उंगलियों का इस्तेमाल करता है और इसे बजाने लगता है, depending on the grace of God, और परमेश्वर की कृपा पर या ये निर्भर रहकर, आमेन, परमेश्वर के कृपा पर निर्भर रहते हुए, God will not immediately heal him. परमेश्वर उसे तुरंत ही चंगा नहीं करेगा. One Sunday will go, एक इतवार चला जाएगा, 2 will go, 2 चले जाएंगे, 3 will go, 3 चले जाएंगे, 4 will go, 4 चले जाएंगे, 5, 5, 6, 6, no idea. और कल्पना नहीं कितने. But लेकिन while he is still playing and nothing is happening, और वो फिर भी बजा रहा है और कुछ भी नहीं हो रहा है, one thing will happen. एक चीज जरूर होगा. If his focus is on God, अगर उसका ध्यान खुदा पर है, slowly one of the fingers will start moving. धीरे धीरे जो 4 उंगलियों में जो चलने रहे थे उनमें से एक चलना शुरू करेगा. Now listen. अब सुनो. Now listen. अब सुनो. What is God expecting from you by giving you a glimpse of a miracle? Come on. और एक चमत्कार का एक झलक आपको देकर परमेश्वर आपसे क्या अपेक्षा रख रहा है?
by giving you a glimpse of a miracle. बस चमत्कार का एक झलक देकर, चमत्कार की एक झलक देकर परमेश्वर आपसे क्या अपेक्षा कर रहा है? परमेश्वर आपसे अपेक्षा ये कर रहा है कि तुम खुद को बोलो वेल डन और आगे अच्छा कर। Come on! खुद को उत्तेजित कर बच्चे। आमेन, कोई आमेन चिल्लाएगा? आमेन। खुद को उत्तेजित कर। बोलो बाजू को चीख के। खुद को उत्तेजित कर, फिर से एक बार। खुद को उत्तेजित कर। अगर परमेश्वर इतना सा उंगली हिला रहा है, इसका मतलब पूरा चमत्कार ऑन द वे है। आमेन। Listen everybody. अब सभी सुनो। So what when still one Sunday goes, two Sundays goes, still nothing is happening now. और फिर भी एक उसके बाद एक इतवार चला जाता है, दो इतवार चले जाते हैं और फिर भी अभी कुछ नहीं हो रहा है। And he stops reading the word of God. और वो परमेश्वर के वचन को पढ़ना बंद कर देता है And he keeps it aside. और उसे बाजू में रख देता है And he says, और वो कहता है एवढं वाज होतं तरी काय होत नाही ना, काय नाही ना, कुठले बोट हालत नाही ना, काय नाही, काहीच होत नाही. काय करायचं राव? काय करायचं वाजवून पण काय फायदा काय तर नाही, नाही आणि काय होतच नाही राव. काहीच होत नाही. काय होत नाही. राव दे यार, मला नाही वाजवायचं, काहीच नाही करायचं. मला देव काहीच करत नाही माझ्यासाठी. मला वाजवायचं नाही, काय नाही करायचं आता, कारण देवच काम काय करत नाही. आता मी काय करणार? मला वाटतं आता चर्चला पण नको जायला, कशाला उगाच सोडून देतो आता सगळं. माझा ब्रदर विशाल आहे, ते चांगले वाजवतील त्यांचं ते. माझं काय वाकड्या बोटाचं मी, आता मी काय वाकड्या बोटचं, आता काय, आता तर मी काय काय वाजवायचं. आता काय वाजवणार नाही मी. असंच माझं मला वाजवून टाकले. देवाने मला वाजवून टाकले. आता काय मी आयुष्यभर असंच राहीन. असं जेव्हा आपण बोलायला विचार करायला सुरुवात करतो, लगेच सैतान सगळे बोट वाकडे करतो सडक करून. ओळखीचं वाटलं काय? ओळखीचं वाटलं? ओळखीचं वाटलं? एक रविवार ज्यावेळेस तुम्ही चर्चला येत नाही का? कारण केस दुखत होता. मग काही नाही, केस दुखत होता म्हणून आले नाही. सटॅक करून दुसऱ्या आठवड्यामध्ये सर्दी, खोकला, ताप, टायफॉइड, फ्लू, मलेरिया, फिलेरिया, लवेरिया, सब कुछ धडाधड ॲडमिट, हॉस्पिटल, ICU. का? कारण लहानसं पहिलं, लहानसं बोल एक गेला, लहानसं 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 म्हणून येशू म्हणाला, तुमच्याकडे काय आहे? 2 मासे 5 भाकरी घेऊन या. आमेन, आमेन, 2 मासे 5 भाकरी ना घेऊन या. आमेन. एक बोट थोडा हलायला लागला, अजून जोरात वाजवणार. आमेन. कारण म्हणजे प्रभूंनी माझ्या विश्वासाला उत्तर दिलेलं आहे. Amen. Come on! So, hear this everybody. तो सभी से सुनो, Use what is left और जो बाकी है उसका इस्तेमाल करो, and focus must go together. और ध्यान जो है ये दोनों भी साथ साथ चलना चाहिए. Amen. Amen. बोले एक दूसरे को फोकस. ध्यान, फिर से एक बार फोकस. फोकस, और जो बाकी है, और जो बाकी है दोनों साथ साथ जाने चाहिए. बोलो, दोनों साथ साथ जाने चाहिए. दोनों साथ साथ जाने चाहिए. दोनों साथ साथ जाने चाहिए. या, निराश होने का नहीं. हाँ, निराश होने का नहीं. फिर से एक बार बोलो, हाँ, निराश होने का नहीं. निराश होने का नहीं. निराश होने का फिर से नहीं. एक बार बोलो, निराश होने का नहीं. निराश होने का नहीं. निराश होने का नहीं. क्यों क्यों पूछो, क्यों 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 क्यों? क्योंकि तेरा चमत्कार आ गया है. आमेन. किधर है मेरे को दिखता नहीं. अरे तेरे विश्वास का लेंस ठीक कर. आमेन. लेंस को ठीक से साफ कर, सब कुछ ठीक से दिखाई देगा. Come on! Saints
saints of God, am I talking to somebody here? परमेश्वर के संतगणों, क्या किसी के साथ में इस जगह में बात कर रहा हूँ क्या? Amen. Amen. Am I talking to somebody there online? क्या मैं किसी के साथ ऑनलाइन यहाँ पर बात कर रहा हूँ क्या? Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. People of God. परमेश्वर के लोगों, So hear this, everybody. I'm closing over here now. तो यहाँ पर सभी जन सुनो, यहाँ पर मैं बंद कर रहा हूँ And point is very clear. और मुद्दा बहुत ही साफ है. Change your mind. Tell your neighbor. आपके बाजू वाले से कहो, आपके मानसिकता को बदलो. Yeah, change your mind. आपके मानसिकता को बदलो. Once again, change your आपके mind. मानसिकता को बदलो. Stop focusing on your problem. आपके समस्या पर ध्यान लगाना बंद करो. माशे ने पकड़ ले, 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 माशे ने पकड़ ले. Head! गुड़का काम करत नाही, गुड़का काम करत नाही, गुड़का काम करत नाही. Head! डोक्यामध्ये अक्कल नाही, डोक्यामध्ये अक्कल नाही. Head! डायबिटीज है, डायबिटीज है. Head! PBA, PBA. Head! काय अजून असते आजार काय? हा? डायबिटीज बोलतो हो गया ना. आर्थराइटिस है. Head! कैंसर है. Head! Head! माइक में बोल. लुकेमिया, Head! टेम्परेचर, Head! डोकंदुखी, Head! अर्धांगवायू, Head! हृदयाचा मेरे विकार. को सुनने का ही नहीं है. अमेन, अमेन, जोर से कमान. अमेन. मेरे को ये सुनने का है, उसके खाए हुए फटके से मुझे चंगाई मिल चुकी है. कमान. So people of God, तो परमेश्वर के लोगों, change your mind. आपके मन को बदलो. Tell your neighbor. आपके बाजू वाले से कहो, बोलो. आपके मन को बदलो. फिर से एक बार. आपके मन को बदलो. Amen. Amen. Focus on the word of God. और आपका ध्यान परमेश्वर के वचन पर डालो. जे बाकी आहे ते वापरा आणि फोकस देवाच्या वचनावर लावा. बोला एकमेकाला, जे बाकी आहे ते वापरा. बोला. जे बाकी आहे ते वापरा आणि फोकस देवाच्या वचनावर लावा. बोला. फोकस देवाच्या वचनावर लावा. पुन्हा बोला, जे बाकी आहे ते वापरा जे बाकी आहे ते वापरा आणि फोकस देवाच्या वचनावरती लावा. आणि बोला. फोकस देवाच्या वचनावरती लावा. बोला एकमेकाला, सांगा 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 सांगा. जे बाकी आहे ते वापरा आणि फोकस देवाच्या वचनावर लावा. कोई आमीन चिल्लाएगा क्या? आमेन. और लॉर्ड को भी ऐसा फील होना चाहिए, अरे इसने मेरे को कर्जे में डाला है. आमेन, लॉर्ड किसी का भी कर्जदार नहीं होता है. आमेन. वो एक दिन आपके घर में आएगा और आपके बाजू में बैठेगा और बोलेगा, कितना कर्जा मेरे पे बढ़ा रहा है, रोक, अब मेरी बारी है. आमेन, आमेन. ऐसा देगा, आपका पूरा एरिया देखते रहेगा. कम ऑन. Hallelujah. So people of God, has the Lord spoken to you today? तो परमेश्वर के लोग, क्या परमेश्वर ने आज आपसे बातें की है या नहीं? Amen. Amen. Let's all rise, everybody.